Now in today lecture, we start variation of ionization potential in a group and period. Write down first point. In a period from left to right, in a period from left to right, in a period in a period from left to right, in a period from left to right, ionization potential decrease, ionization potential increase, ionization potential increase due to decrease in atomic size, due to decrease in atomic size, due to decrease in atomic size and increment and or increase of Z effective nuclear charge, effective nuclear charge, but not a regular way. From left to right, ionization potential will be increased, no doubt. Due to size will be decreased. Okay. Effective charge will be increased, but not a regular way. Means lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. Left to right, ionization potential should be increased, and sequence will be like that. But sequence will be like that. Here, this one will be wrong. So from left to right, no doubt, ionization potential will be decreased, but not a regular way. Here, beryllium has more ionization potential than boron, and nitrogen has more ionization potential than oxygen. Here two exception is there. Here two exception is there. First exception here and second exception here. I will explain exception in other section, but first we know that what will be exception in left to right. So we can say that beryllium has more ionization potential than boron. This one will be first exception. And the second exception is that nitrogen has more electronegative than oxygen. That will be second exception. Okay. Now my next point is that exception will be repeat in period number third or not? Yes. Lithium के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम
बेरिलियम मैग्नीशियम, बोरॉन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, नियॉन आर्गन। नो डाउट from left to right ionization potential should be increased, but we know that there will be two exception. First exception in between beryllium and boron, that's like this exception will be occur also here in period number third. This one is period number 2 and this one is period number 3. This exception will also occurring here, and right answer is that lithium then interchange to beryllium and boron, then after carbon, then oxygen, then nitrogen, then fluorine, then neon, and here sodium, then aluminum, then magnesium, then silicon, then sulfur, then phosphorus, then chlorine, then argon. Then this will be right. So from left to right, ionization enthalpy should be increased, but not a regular way. Here some exception will occurring. Those are underlined, that will be exception. Okay, write down. Now in a group from top to bottom, ionization potential in a group from top to bottom, ionization potential will be decrease. Ionization potential will be decrease. Ionization potential will be decrease because size will increase. 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 एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं. अगर हम बात करें लिथियम का, तो लिथियम का ज्यादा होगा सोडियम का, लिथियम का ज्यादा होगा सोडियम से, सोडियम का ज्यादा होगा पोटेशियम से, अगर हम बात करें मैग्नीशियम का, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, यानी टॉप टू बॉटम यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो व्हेन साइज विल बी इंक्रीज देन इट विल बी मोर इजी टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन. It will be more easy to remove outer cell electron. Okay. Now next point is that ये हमारा ग्रुप वेरिएशन हो गया ग्रुप में और पीरियड में. अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. तो हेडिंग डालो exception in ionization enthalpy.
Write down heading exception in ionization enthalpy. Exception in ionization enthalpy. Write down heading exception in ionization enthalpy. तो पहला एक्सेप्शन नंबर 1, inert gas has highest ionization enthalpy. क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए which has highest आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ऑप्शन में दे दिया जाए बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन, तो बिना हम सोचे समझे बोलेंगे नियॉन, क्योंकि इनर्ट गैस जो होता है वो किंग होता है। इनर्ट गैस जो होता है किंग होता है, उसका किसी से कंपेयर नहीं होता है। 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन अगर मिले इनर्ट गैस तो किंग है। अगर इनर्ट ही मिले एमोंग इनर्ट, अगर इनर्ट गैस और इनर्ट गैस ही मिल गए तो सबसे ज्यादा होता है हीलियम का, देन नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन, देन जेनॉन, देन रेडॉन। Among the inert gas, helium is highest. If in 4 options there will be only one inert gas, then we can say that inert gas is king. Inert gas is king and king has no compare. किंग का कोई कंपेयर नहीं होता है। इसीलिए बिना हम सोचे समझे इनर्ट गैस को आंसर करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। राइट डाउन हो गया ये। राइटिंग इज कंप्लीट और नॉट? Inert gas has highest ionization enthalpy because it has a stable configuration. It has a stable configuration. या हम बोल सकते हैं it has fulfilled configuration. क्या बोल सकते हैं? जैसे नियॉन 1s2 2s2 और 2p6, it has fulfilled configuration या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल
अच्छा मुझे ये बताओ कि हम इलेक्ट्रॉन निकालते क्यों हैं? व्हाई वी शुड लूज द इलेक्ट्रॉन? हमें इलेक्ट्रॉन निकालने की क्या जरूरत पड़ती है? क्यों हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की क्या, हम इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूज करते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ना, टू बिकम स्टेबल होने के लिए। अब मान लो पहले से स्टेबल है तो क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन निकालने देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। तो ये पहले से स्टेबल है तो हम लिखेंगे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज losing of electron for gate stability. इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं। इफ इट हैज ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इफ इट हैज ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्या हमें कोई जरूरत है क्या कि हम जो मर्जी करे वो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ऐसे? आखिर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ना। जब वो पहले से स्टेबल है तो क्यों निकालने देना चाहेगा? उसकी क्या जरूरत है? कोई नीड नहीं है। इफ इट हैज ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नो नीड टू लूज द इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने बोला कि निकालो, निकालना है तुम्हें, तो बोलेगा कि ठीक है हम निकालेंगे, लेकिन हमें एनर्जी बहुत ज्यादा दोगे तब। तो इन दैट केस मोर एनर्जी विल रिक्वायर्ड। ऐसे केसेज में एनर्जी बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनर्ट गैस का बहुत ज्यादा क्यों होता है, तो आप उसका आंसर दोगे कि इट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और इट हैज फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर गेट स्टेबिलिटी, हम इलेक्ट्रॉन को लूज इसलिए कराते हैं ताकि उसमें स्टेबिलिटी बना रहे। अगर मान लो पहले से स्टेबल है तो क्या हमें जरूरत है उस चीज को बाहर निकालना? और स्टेबल चीज में से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल कर अनस्टेबल क्यों बनाना चाहेंगे? नहीं बनाना चाहेंगे। अगर बोला गया कि नहीं बनाओ, हम नॉर्मल केस में तो बोलेंगे नहीं बनाएंगे हम, लेकिन बोला गया कि बनाओ, तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो उस केस में हम बोलेंगे ठीक है हम बनाएंगे, लेकिन उस केस में एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो इनर्ट गैस का होता है वो किंग होता है, किंग, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है और इनका कंपेयर किसी दूसरे से नहीं होता है। तो ये माना जाता है कि दिस वन इज किंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देना चाहता है। इसको राइट डाउन कीजिए आप। ये समझ में आया सबको? तो नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक्सेप्शन इज बेरिलियम हैज मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन एंड Mg हैज मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्युमिनियम। नाइट्रोजन हैज मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन and phosphorus has more ionization enthalpy than sulfur. ठीक है, तो एक्सेप्शन नंबर 2 और 3 का एक्सप्लेनेशन हम बाद में देंगे। पहले हम एक्सेप्शन नंबर 1 पे अभी बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। लिख लिए होगे।
हम एक्सेप्शन नंबर 1 पे बातें कर रहे हैं। पहला बात क्या करेंगे तो ध्यान से सुनो, बात करने का मतलब क्वेश्चन कैसे करना है। तो एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है? इनर्ट गैस हैज हाई, इनर्ट गैस हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, इनर्ट गैस का सबसे हाई क्यों है? इनर्ट गैस का बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होता है? ध्यान से सुनो और बताओ मेरे को, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनर्ट गैस का सबसे बहुत ज्यादा हाई क्यों होता है? व्हाई इट हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाई इट हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी? बिकॉज इट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बरोबर है ना? इट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा मुझे बताओ, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब क्या हुआ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और एरॉन। तुम लोग बोले हो सर इट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बोले ना? ये बोले ना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बोले हो ना? या डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट। अगर मान लो क्या मानोगे? इनके अलावा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन के अलावा अगर मैं बोलूं कि देखो कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो निकल जाएगा, तो दिस वन इज IE1। अगर मैं बोलूं कि सोडियम प्लस से निकालो तो तुम बोलोगे सर अब क्यों निकालेंगे, इसका तो कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट हो गया ना, ये इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देना चाहेगा, लेकिन हम कहेंगे कि निकालो तो तुम क्या बोलोगे? सर बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा क्योंकि ये स्टेबल बन गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट के जैसा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इट हैज इनर्ट, इट हैज कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस। इसको बोलते हैं इट हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नियॉन को ही जानते हो और आर्गन को भी जानते हो। हम किसको जानते हैं? जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा हम उसको जानते हैं, केवल हम इनको नहीं जानते हैं। ये तो है ही, लेकिन ये भी क्या है? ये भी स्टेबल है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट के जैसा होता है। इसलिए तो बोला जाता है पीरियोडिसिटी मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करे। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? हम पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। Ionization enthalpy is a periodic property. That means it is not a neon. A neon नहीं है, but its configuration is like that neon. और हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? उसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। हमें इसके प्रोटॉन से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि इसका इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। भले ही नियॉन नहीं है लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा है और 100% है। उसका भी कॉन्फ़िगरेशन इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स Na+ हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा है और 100% है। भले ये नियॉन नहीं है लेकिन हम चीजें ऐसा नहीं कि Na+ देके हम मुंह मोड़ लेंगे, नहीं, मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम बोलेंगे तुम भी क्या हो? स्टेबल हो। तुम्हारा भी हक उतना ही है जितना नियॉन का है, क्योंकि तुम भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हो और हम भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो इतना ही काफी होता है हमारे लिए बातें जानना। दैट मीन्स इट हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जब जाता है तो निकाल तो देंगे, लेकिन जो वैल्यू आएगा वो IE2 इज मच 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 हायर देन IE1। दैट मीन्स यहाँ का एनर्जी अगर यहाँ 10 जूल है तो यहाँ पर 1000 जूल होगा।
10 joule is much 1000 is much higher than 10. That's why IE2 is much larger than IE1. पहले इसको लिखो, फिर हम आगे बात करेंगे। समझ में आया क्या? तो पहले इसको लिख लो आप। लिखने के बाद हम कल इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। अगर इनर्ट गैस हमने पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, टॉप टू बॉटम जान लिया, लेफ्ट टू राइट जान लिया, एक्सेप्शन जान लिए, अब हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ाएंगे, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। इसके आगे हम कल डिस्कस कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल। मैं इसके आगे भी कल कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम 5 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको मैं कल करवाता हूँ। ओके।